First side heading, mechanical equivalent of heat. Mechanical equivalent of heat. Yeah. See, what is this says that Joule was the first scientist who gave the relationship between heat and work better. Okay, so right here, Joule gave relationship between heat and work. Heat and your work. जैसा अपन हाथ रब करते हैं बेटा, that means we are doing work. When we rub our hands during the winter season, we feel what do you call that, warmness, isn't it? So he said that there is a relationship between the heat and as well as of your work, He told that, see here beta. He told that for 4.186 joule of mechanical work, of your mechanical work, 1 degree rise in temperature was found. जॉल साहब ने क्या बोला, अगर अपन 4.186 जॉल ऑफ मैकेनिकल वर्क करते हैं तो वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर यूज करने के लिए होता है. यानी वाटर का टेम्परेचर अपन 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना चाहिए, 4.186. कैलकुलेशन के लिए ये अपन हम लोग 4.2 ले लेते हैं बेटा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, वो बाद में कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना. सो अब यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ा वाटर का, सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade is called as what? Calorie. The amount of heat required, the amount of your heat required to raise the temperature of 1 gram of water, 1 gram of water by 1 degree centigrade is called calorie. आई बात समझ में सभी को? So what do you mean by your calorie? So the amount of your heat required, कितना heat required चाहिए अपने को, so that we can raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade is called as of your calorie. ठीक है ना. ये अप्रोक्सीमेटली होता है 14.5 से लेके 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो, ठीक है ना. तो हम लोग यहाँ पर एक रिलेशन लिख सकते हैं इसमें. आई कैन से दैट 1 कैलोरी के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 4.186 टर्म्स ऑफ योर जॉल ऑफ योर मैकेनिकल वर्क चाहिए, ठीक है. यानी 1 calorie is approximately equal to 4.2 joules for calculations. 1 calorie is equals to your 4.2 joules. Clear है बेटा? Is that clear? Is that clear? 1 calorie is equals to your how much beta? 1 calorie is equals to your 4.2 joule. 4.2 joule. तो अपन ने क्या समझा यहाँ पर? कैलोरीमेट्री में अपन पहला फर्स्ट टर्म डिफाइन कर रहे हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. जॉल साहब ने क्या बोला कि जॉल ही हैज जनरली गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क. उसने बोला कि टू raise the temperature of 1 degree centigrade rise in temperature of water as rise in temperature of your body, it was been found that 4.186 joule of mechanical work was been done. ठीक है. तो the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade is called as of your calorie. Clear है सभी को? चलो वेरी गुड. तो 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी हो गई, 4.2 जॉल. 4.2 जॉल. अब यहाँ पर अपन डिफाइन कर सकते हैं Q is your unit of what beta? Heat, isn't it? So Q is directly proportional to work done. तो
So proportionality constant निकाले तो we get some constant known as of your J, isn't it? So work done is directly proportional to जितना हम लोग वर्क करेंगे that is directly proportional to heat produce, क्योंकि work is producing the heat ना, यानी रब कर रहे हैं, that means we are doing the work. तो ये proportionality constant निकाल रहे हैं, तो we are getting some constant known as J into your Q, यानी this J is equals to how much for me beta? W divided by Q. This J is only known as of your mechanical equivalent of heat. J is known as what? Mechanical equivalent of your heat. बस समझ में? What is the unit of the joule work beta? Work is measured in the joule and Q is measured in calorie. Both of them are unit of what beta? Energy है. So this is remaining for me a constant. ठीक है? J value is found to be your constant. So J is equals to how much for me beta? W divided by your Q. Clear है सभी को? Okay. See, when I'm using here W, this work done can be anything beta. It can be your kinetic energy half into m into v square. This work done can be in the form of potential energy mg into h. This can be your capacitor energy half cv square. This can be your magnetic energy right now for me, or half of your b square into your mu part of relation, or half into your epsilon naught into your u square, depending upon the given situation part of relation. It can be any form of your energy. Work can be a form of your energy part of relation. So W is equals to your force into W displacement. A work done is equals to change in kinetic energy. A work done is also equal to your potential energy. A work done is nothing but form of energy. It is Q into half into C into your V square. That may be a form of your energy beta. What जितने भी form of work done है, we can write here right now. So that will do in detail in the further section. So यहाँ पर सिर्फ आप roughly याद रख लो. इसका application हम लोग बाकी क्लास में कर लेंगे. तो next definition जो अपने को याद रखना है इसके अंदर, that is about your heat. Very important beta. या इसको अपन थर्मल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं. थर्मल कैपेसिटी. So what do you mean by heat capacity, or what do you mean by your thermal capacity? Okay, it is nothing but beta, it is heat per your unit change in temperature. Thermal capacity किसको बोलते हैं बेटा? Heat produced per unit change in temperature. मैं definition लिख रहा हूँ, देखो. It is heat per unit change in temperature. Unit change in your temperature. इसको मैं कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. So capital H is equals to heat मतलब Q divided by temperature is nothing but delta T. So Q is nothing but what beta? Heat. Delta T is nothing but of your temperature. Increase करने के लिए. इसका यूनिट क्या हो सकता है, कोई बताएगा? Unit is joule per Kelvin, or it is your joule per your degree centigrade. R अपन CGS में लिखेंगे तो calorie per your degree centigrade. Clear है बेटा? Is it clear? Heat capacity is represented by letter capital H. Capital H. So H is equals to your heat produced per unit rise in your temperature. H is equals to Q by delta T. H is equals to Q by delta T. Unit is joule per Kelvin और joule per degree centigrade बोल सकते हैं, या calorie per your degree centigrade. Clear है? हीट किस पे डिपेंड करती है? अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत बच्चों को थियोरेटिकल क्वेश्चन में यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है. It depends only on nature of material and mass. It is not depending upon the temperature. So I can say that it depends on nature of body and mass of body. Okay, it depends upon the nature of the body and also the mass of your body. That is about your heat capacity. Definition clear है सभी को? So is the definition clear for us? So what is the definition beta? It is your heat per your unit change in your temperature. H is equals to Q by your delta T. Clear है सभी को? यहाँ पर दो definitions आए अपने को. ठीक है ना? हीट कैपेसिटी, हम लोग स्पेसिफिक हीट के बारे में नहीं बात कर रहा. क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो बेटा. Where the next heading? Very important. Specific heat capacity.
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना? किसी की याद है बेटा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। केमिस्ट्री में आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। द अमाउंट ऑफ heat required, the amount of your heat required to raise the temperature of 1 gram of substance, 1 gram of substance by 1 degree centigrade, 1 degree centigrade is called specific heat, is called specific heat. Clear है? Specific heat capacity is nothing but the amount of heat required, the amount of your heat required to raise the temperature of, amount of your heat required to raise the temperature of 1 gram of your substance by 1 degree centigrade is called as of your specific heat. यानी ये जो heat है delta Q is directly proportional to the mass, यानी mass बढ़ेगा तो heat required will also be more. Delta Q is directly proportional to rise in your temperature. इन दोनों को मिला के अगर लिख रहे हैं combinedly, so we'll be writing here therefore delta Q is directly proportional to mass into delta T. ये proportionality constant अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो I'll write this one as delta Q is equals to m into s into delta T. ठीक है ना? जो यहाँ पर constant आया, इस constant को हम लोग क्या बोलते हैं? This s is known as of your specific heat. This is known as what? Specific heat. Q is equals to this much. Clear है सभी को? Is it clear? यानी इसमें से मैं specific heat कैसे निकाल सकता हूँ? S is equals to your delta Q divided by mass into your change or increase in temperature. S is equals to delta Q divided by mass into delta T. इसके units बता सकता है कोई? Units. Q is measured in joules divided by mass is measured in your kg, temperature is measured in degree centigrade, or it can also be written as of your joule, kg, Kelvin, or CGS system में लिख रहे हो तो this will be equal to your calorie divided by gram degree centigrade. Depend करता है आप कैसा लिख रहे हो basically. ठीक है ना? So specific heat का फॉर्मूला क्या है बेटा? S is equals to your delta Q divided by m into delta T. बात क्लियर है सभी को यहाँ तक? S is equals to your delta Q divided by m into your delta T. चेंज इन को डेल्टा से नहीं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेरी स्मॉल चेंज रहे तो DQ लिखेंगे. यहाँ पर एवरेज बात कर रहे हैं ना, एक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई बॉडी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. अगर एवरेज टेम्परेचर हो रहा है बेसिकली रेज इन टेम्परेचर कैसे रिप्रेजेंट? डिफरेंस ही रिप्रेजेंट करोगे ना. वेरी स्मॉल रेज के लिए हम लोग DQ से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है ना? तो स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट व्हाट बेटा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस by 1 degree centigrade is called as of your specific heat. That rise in temperature is directly proportional. Heat is directly proportional to mass and heat produces directly proportional to temperature. So delta Q is directly proportional to your m into delta T. या DQ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. DQ is directly proportional to m into delta T, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके ना? आप क्या फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बेसिकली कैलोमेटिक्स में डेल्टा Q और D का डिफरेंस मालूम होगा. डेल्टा मतलब एवरेज, एक वैल्यू जो अपने को मालूम है. डेल्टा मतलब वेरी स्मॉल, 0.01 से लेके 0.002, 1 से लेके 2 तक कुछ लिख रहे हो ना, वैसे वाले के लिए अपन क्या लिखते हैं? D से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर बताइए. 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू हाउ मच? बताओ कोई. 1 कैलोरी divided by 1 gram 1 degree centigrade is equals to 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 4.2 joules divided by 1 gram is equals to kg divided by 1000, 10 to the power of -3 ना, तो into डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री सेंटीग्रेड लिख दो. तो 4.2 डिवाइडेड बाई 1000 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा? 42 डिवाइडेड बाई यूर 10 इंटू यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1000 और ये वाला चले गया इंटू जॉल डिवाइडेड बाई kg डिग्री सेंटीग्रेड. सो देयरफॉर आई कैन से दैट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू
4200 है कि नहीं, 4200 joule per kg degree centigrade. Very important conversion. 1 calorie per gram degree centigrade is equals to your 4200 joule per. So difference between heat capacity and specific heat. यहाँ पर देखो मैंने हीट कैपेसिटी में हम लोग ने क्या डिफाइन किया, हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. यहाँ पर स्पेसिफिक हीट इज राइट नाउ फॉर मी व्हाट, हीट चेंज इन पर यूनिट मास and unit raise in temperature, amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of any substance. वहां पर अपन हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, वाटर के लिए, नेचर ऑफ द बॉडी यानी मास जो भी डिपेंड करता है उस पर. सो इट इज हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. यहाँ पर हीट रेज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है ना, न्यूमेरिकली दोनों सेम होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको कन्वर्ट कर देंगे वैसे. ठीक है ना, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर. ये कन्वर्शन याद होगा ना सभी को. 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 4200 जॉल केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड. वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्शन. क्लियर है बेटा. नहीं होता है बेसिक. देखो मैं आपको, अगर मैं आपको क्लैरिटी कर दूं तो यहाँ पर देखो मैं दूसरे पेन से लिखा हूँ, एक नोट डाल के लिखता हूँ ना तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. स्पेसिफिक हीट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, can also be defined as heat capacity per unit mass, ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग. स्पेसिफिक हीट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज व्हाट बेटा, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास यानी H by m, H डिवाइडेड बाई योर m, दैट इज इक्वल्स टू, H का वैल्यू कितना था देखो यहाँ पर अभी लिखे हम लोग, H की वैल्यू कितनी थी, H इज इक्वल्स टू Q बाई डेल्टा टी. तो यहाँ पर Q बाई डेल्टा टी डाल दो, Q बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई m. तो ये हो गया मेरे पास Q बाई डेल्टा टी इंटू योर m. Q बाई डेल्टा टी इंटू योर m क्या है बेटा, यहाँ पर देखो Q बाई डेल्टा टी इंटू योर m, यहाँ पर दिख रहा है बेसिकली Q बाई डेल्टा टी इंटू योर m इज नथिंग बट ऑफ योर s ओनली ना. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ H बाई योर m इज नथिंग बट इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, यानी हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू योर m इंटू योर s. This is also one of the other form of your heat capacity. ठीक है ना. Is that clear? H is equals to your m into your s. H is also called as what beta? Thermal capacity. Thermal capacity. And S is nothing but of your specific heat, and M is your mass of your body. So H is equals to your M into your S part of relation. Clear is सभी को? Is that clear? चलो. Next one and very important definition: water equivalent. Water equivalent. Water equivalent. Water equivalent क्या है बेटा? It is numerically equal to the heat capacity only, most probably. Clear? What is an water equivalent? याद है किसी को? Sir, what is the weightage for the thermal properties of matter?
मैंने आप लोगों को वेटेजेस ऑलरेडी बचा चुका हूँ बेटा, पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में से विल बी गेटिंग 3 क्वेश्चंस, रफली 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से एक, थर्मल प्रॉपर्टीज से एक, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में से 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग द 3 टॉपिक्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस मिला के एक क्वेश्चन आएगा। कैलोरीमेट्री और हीट कैपेसिटी, व्हाट यू कॉल दैट, हीट ट्रांसफर मिला के एक क्वेश्चन आता। बड़े टॉपिक्स है लेकिन इजी टॉपिक्स ही है बेटा, केमिस्ट्री के रिलेटेड ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, आप रिसर्च मत करो इस चैप्टर पे, ठीक है। अब देखो वाटर इक्विवेलेंट क्या है, हाँ ठीक है, चलो देखो अब मेरे पास एक बॉडी है ऐसा, ओके, कुछ बॉडी है ये, चलो ये मास ऑफ द बॉडी है और इसका स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी इज एसबी है। अब मैंने इसको थोड़ा एनर्जी दिया है ऐसा, ये बॉडी है बेटा कुछ, इफ वी गिव डेल्टा क्यू हीट टू बॉडी, ओके, इतना हीट मैंने दिया तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कितना, डेल्टा टी। ये मेरा कुछ बॉडी है, इस बॉडी को मैंने, इस बॉडी का मास कितना है एम बी, स्पेसिफिक हीट कितना है एस बी, इस मास, इस बॉडी को मैंने थोड़ा हीट दिया डेल्टा क्यू, तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा टी से इंक्रीज हुआ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास वाटर है, मान के चलो एक कंटेनर में वाटर है, ठीक है, एक कंटेनर में वाटर है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मेरे पास वाटर है, इसके अंदर मैंने क्या किया, इस वाटर को भी उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है ना। इस अमाउंट को भी आई हैड गिवन सेम अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू, जितना मैंने इस बॉडी को दिया हुआ है उतना ही इस वाटर को भी दिया हुआ है। तो मुझे ये पता चला ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मतलब एस डब्ल्यू है, ओके ना, स्पेसिफिक। और मास ऑफ द वाटर जो भी लिक्विड है, बेसिकली मास ऑफ योर लिक्विड, मास ऑफ योर लिक्विड क्या है ना, आई एम टेकिंग इट एज ऑफ योर सम डब्ल्यू। तो मुझे ये पता चला कि when I'm giving the same amount of the heat to this liquid which is having the specific heat of water as SW and mass of the liquid as FAW, इसका भी टेम्परेचर उतना ही इंक्रीज हुआ, डेल्टा टी उतना ही इंक्रीज हुआ जितना इस बॉडी के लिए इंक्रीज हुआ, यानी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज सेम फॉर बोथ दी बॉडीज बेटा, ठीक है। मैंने डेल्टा क्यू दिया तो डेल्टा टी इंक्रीज हुआ, वाटर को भी मैंने डेल्टा क्यू दिया, उतना ही अमाउंट ऑफ रेज इन टेम्परेचर मुझे पता चला एक्सपेरिमेंटली। सो आई कैन से दैट डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू सेम फॉर बोथ बॉडीज, इज सेम फॉर योर बोथ बॉडीज, यानी वो एक कांस्टेंट हो गया। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी सेम मतलब क्या लिखोगे बेटा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी सेम मतलब क्या लिखोगे, स्पेसिफिक हीट में से क्या लिखोगे, देखो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी मतलब क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा क्यू मतलब क्या लिखोगे, स्पेसिफिक हीट ही लिखोगे ना, H is nothing but what for me, delta Q by delta T only ना, delta Q by delta T is nothing but what for me, और amount of your heat given, heat capacity से कैसे लिख रहे हैं हम लोग, Q by delta T, so delta Q by delta T is nothing but for what, heat capacity, so heat capacity of your body is equals to heat capacity of your water, यानी mass of your body into specific heat of your body is equals to mass of the water, I am representing it by W, and specific heat of the water is SW, यानी वाटर इक्विवेलेंट, ये जो W है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट। सो W इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉडी स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अगर वाटर इक्विवेलेंट पूछा प्रॉब्लम में तो विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, W is known as of your water equivalent, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर नीट एग्जाम। वाटर इक्विवेलेंट डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें, ज्यादा डेप्थ के प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं बेसिकली। इससे पहले जब एमसेट हुआ करता था ना तो डेप्थ ज्यादा हुआ करता था, बेसिकली हम लोग सॉलिड सेपरेटली पढ़ते थे, लिक्विड सेपरेटली पढ़ते थे, लिक्विड्स बड़ा, गैसेस में भी बहुत बड़ा डेप्थ में पढ़ते थे। लेकिन अभी एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप एनसीईआरटी निकाल के देखो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स गैसेस हार्डली एक 1.5 पेज में दे रखा है एनसीईआरटी में ठीक है ना। तो ओवरऑल नेक्टार बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यानी पूरे चैप्टर को आप लोग, जैसे रिवीजन मैंने किया था, देखो लास्ट सेक्शन में मैंने दूसरे सेक्शंस को रिवीजन किया था, तो पूरा सॉलिड्स मैंने देखो कितने में रिवाइज कर दिया था, देखो यहाँ पर देखो गैस लॉस आप लोग को पढ़ाया था मैंने, थर्मोमेट्री का रिवीजन,
पता नहीं कहाँ चले गया। ये देखो कल मैंने रिवाइज किया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स IC1 को, और बॉयज के लिए मैंने रिवीजन किया था। तो कितने में आया था? मैक्सिमम एक पेज में, है ना। इतने मेरे 4 प्रॉब्लम्स थर्मामीटर में मिले, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स में मेरे कितने फॉर्मुलेस मिले? हार्डली सम 12 प्रॉब्लम्स मिले, 12 फॉर्मुलेस मिले। उसके बाद हम लोग ने डायरेक्टली प्रॉब्लम्स कित दिए इस पे बेसिकली। ठीक है, ये नोट्स मैंने आप लोगों को भेजा था, आप लोग ने बोला उसका नहीं मिला, तो मैं आपको फिर एक बार रिसेंड कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। ठीक है ना। चलो हम लोग कर रहे थे कैलोरीमेट्री पे। ठीक है, स्पेसिफिक हीट हो गया, कैलोरीमेट्री का हो गया। वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा? मास ऑफ द बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ योर वाटर। बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर आ गया? सर प्रॉब्लम PDF। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा एक बार। क्वेश्चन देख लो बेटा। इफ स्पेसिफिक हीट S इज इक्वल्स टू 3 into your T square। T क्या है बेटा? यहाँ पर टेम्परेचर है बेटा, ओके। एंड मास ऑफ द बॉडी मान के चलो 10 ग्राम्स है, ओके। एंड टेम्परेचर इज इन डिग्री सेंटीग्रेड। माय क्वेश्चन इज what is heat required? What is heat required from 2 degrees centigrade to 4 degrees centigrade? ठीक है ना। कैपिटल T क्या है यहाँ पर? कैपिटल T इज योर टेम्परेचर। सी यहाँ पर स्पेसिफिक हीट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा स्पेसिफिक हीट भी अपने को चेंज होगा। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट भी चेंज होगा। सो इट इज नॉट ए कांस्टेंट टर्म, ये चेंजेबल है। तो अपने को क्या यूज करना है? इंटीग्रेशन करना है। एस S is function of temperature, so we need to use the concept of integration for heat। तो कैसे लिखोगे? हीट का फॉर्मूला क्या है बेटा? हीट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा Q is equals to M into S into delta T, isn't it? Now if I integrate this one for very small change, for small changes I can write delta Q by MS into delta T as d cube is equals to M into S into your dt. Now integrate on both the sides beta. Now integrating on both sides, यानी इंटीग्रल ऑफ योर d cube is equals to इंटीग्रल ऑफ योर M into S into your dt। इंटीग्रल ऑफ dt कितना होता है बेटा? 0 से लेके मान के चलो Q है तो ये Q हो गया। यहाँ पर तो मास कांस्टेंट है। इंटीग्रल स्पेसिफिक हीट कितना है? 3 into T square into your dt। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक है बेटा? 2 से लेके 4 तक है। अब इसमें 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकालो। सो Q is equals to M और 3 भी कांस्टेंट है। इंटीग्रल ऑफ T square into dt, ये फॉर्मूला तो अपने को मालूम है। इंटीग्रल ऑफ x to the power of n into dx is equals to x n plus 1 divided by n plus 1। तो अब इसका इंटीग्रेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। इंटीग्रल ऑफ योर t square into your dt will be equal to how much बेटा? t square मतलब t plus of your 2 1 divided by 2 plus 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। q is equals to your 3 into your m 2 2 4 है। इंटीग्रल ऑफ t square into dt कितना होता है बेटा? t cube divided by 3। लिमिट्स आर राइट नाउ फॉर मी 2 to 4। ठीक है, तो ये 3 और ये 3 चले जाएगा बेटा। सो दैट इज इक्वल्स टू योर 3 डिवाइडेड बाय 3 इनटू मास। मास की वैल्यू कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? मास इज गिवन एज ऑफ योर 10 ग्राम। सो इट इज योर 10 इनटू t क्यूब, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 क्यूब माइनस ऑफ योर 2 क्यूब। तो 3 और 3 चले गया। सो दिस वन इज ऑफ योर 10 इनटू 4 क्यूब कितना होता है बेटा? 4 into 4 4 4 16 16 4 64।
minus 2 cube, 2 2 is 4, 4 2 is 8. So this is your 8. तो कितना बनेगा बेटा? 64 minus 8 कितना है? 64 minus 8 कितना है? कोई बोलना? सर प्रॉब्लम्स पीडीएफ 56 into 10 कितना हो जाएगा? 560. तो ये हो गया 560 कैलोरी. तो ये हो गया क्यू की वैल्यू. बात समझ में आई? छोटा प्रॉब्लम है, आपको समझाने के लिए मुझे इतना डिटेल में लिखना पड़ा, वरना अगर मैं करने बैठता तो 2 लाइन में मुझे इसका आंसर आ जाता बेसिकली. आपको समझाने के लिए पूरे पॉइंट्स लिखना पड़ा. अगर मुझे करना पड़ता, मेरे पास प्रैक्टिस होती, तो ये पूरे चीजें मैं मेंटली करता, खाली इंटीग्रेशन ही लिखता. क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? आई बात समझ में सभी को? चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर. देखो, there are two spheres whose densities are in the ratio of 4:5. ठीक है? and radius in the ratio of 1:2. So stop. They have equal heat capacities. So what is the ratio of their heat capacity? Ratio of their specific heats. चलो करके बताओ. There are two spheres whose densities are in the ratio of 4:5 बेटा, and radius का density दे रखा है in the ratio, तो क्या क्या दे रखा है बेटा? 1:2, whose densities are in the ratio, यानी ρ1 divided by ρ2 is equals to 4/5. Radius r1 divided by r2 is equals to 1/2. They have equal heat capacities. Heat capacities are same. मतलब Q divided by delta T is equals to your M into S, which is your constant. ठीक है ना? So delta Q of two spheres यानी M1 S1 must be equal to M2 S2. ठीक है ना? Mass is equals to volume into density into specific heat of the first body is equals to volume of specific second body, density of second body, specific heat of second body. Volume of the spherical body, as it is a spherical body, volume will be 4/3 pi into your r1 cube into ρ1 into your s1 is equals to your volume is equals to 4/3 pi into your r2 cube into your ρ2 into your s2. So 4/3 gets cancelled. So anything else? Nothing is else getting cancelled. We need what beta? The ratio of their specific heats, यानी s1 by s2 is equals to how much is asking. S1 by S2 निकालो इसमें से बेटा. S1 divided by S2 will be equal to your R2 cube divided by your R1 cube into ρ2 divided by ρ1. पता है ना बेटा? Any doubt in this one? So ρ2 by ρ1 कितना है बेटा? यानी R2 by R1 कितना है? 2/1. So it is 2/1 whole cube into ρ2 by ρ1 कितना है? यानी 5/4. So this one is your 5 divided by 4. 2 cube कितना होता है? 2 to the 4, 4 to the 8 होता है ना? 2 cube 2 into 2, so 8 into this one is 5 divided by 4. 4 1s are 4 2s are, यानी ये हो गया 10. So 10:2. So मैं लिख सकता हूँ S1:S2 is equals to 10:1. Clear है सभी को? No doubt anyone? Very good. आई बात समझ में सभी को यहां तक? क्लियर है बेटा? So this was the introduction related to your calorimeter. ठीक है? डाउट है इसके अंदर? उनकी भी नोट्स एक बार मैं भेज देता हूँ, चेक कर लेता हूँ इसके लिए.
ठीक है। अरे यार मैं आप लोगों को सॉलिड्स का ऑलरेडी असाइनमेंट भेज चुका हूँ, लिक्विड्स का भेज देता हूँ। लिक्विड्स और गैसेस का मिला के आप लोगों को ऑलरेडी आ चुका है, वही देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, सर सॉलिड्स के असाइनमेंट्स ओपन नहीं हो रहे, पता नहीं अपना। आप लोगों को वर्ड फाइल वगैरह रख लो आप लोग बेसिकली। ठीक है, भेज देता हूँ वैसे। वैसे भी वीकेंड में आप लोग को ये टॉपिक है, तो आप लोग को मैं वर्किंग भी ज़्यादा करा देता हूँ, और ये टॉपिक भी मैं जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। कैलोरीमेट्री कल एक दिन में ख़त्म कर लेंगे, कल या परसों की क्लास में ख़त्म हो गया था, वीक का सिलेबस भी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के और थोड़ा एप्लीकेशन कर लेके विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस वन। ठीक है, क्लियर है। आज का तो एग्जाम ओके ही था ना, हमारे ट्रैक में का था। की करेक्शन तो वैसे होता ही रह जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो आप लोग को करने आए ना, वो इंपॉर्टेंट है अपने। ठीक है, पता नहीं क्वेश्चन पेपर किसने दिया हुआ है, फिर भी ठीक है। चलो टेक केयर बेटा, बाय।